Hey guys, welcome to another video. In this video, we are going to start Java programming. Okay, so let's take a start. Before starting, you should know some basics about Java, and it can be explained in a single statement that Java is a platform independent language. So इसका मतलब क्या है कि Java is a platform independent language? इसका मतलब ये है कि इसका जो कोड होता है वो किसी भी मशीन पे डिपेंड नहीं करता. इसका प्लेटफॉर्म मींस अ मशीन. ठीक है, तो हमारा जो कोड होता है उसका प्लेटफॉर्म एक मशीन होती है, तो वो जिस भी मशीन में कंपाइल हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. बिकॉज इसका जो कोड होता है वो कंपाइलेशन के दौरान बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, जो हम फिर वो एक ऐसी फॉर्म है जो हम किसी भी मशीन पे हम रन कर सकते हैं और हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा. सो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. ओके, सो जावा में क्या होता है? क्लासेस होती हैं. अ क्लास हैज एट्रीब्यूट्स और इसका एक और नेम है डाटा मेंबर्स. ओके, सो क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सिंपल वेरिएबल्स होते हैं जिनको एट्रीब्यूट्स का नाम दिया गया है. और क्या होता है? एंड मेंबर फंक्शंस और मेथड्स. सो मेथड्स और फंक्शंस ये भी एक एंटिटी के नाम है, और जो डाटा मेंबर और एट्रीब्यूट्स ये भी एक ही एंटिटी के नाम हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक्लिप्स पे चलते हैं. सो आई हैव ओपन्ड एक्लिप्स. रिमेंबर, ये हमने एक फोल्डर बनाया था प्रीवियस वीडियो में. इसके src फाइल पे क्लिक करें एंड देन न्यू, and then we have to make a class. So create it with the name, for example we are proceeding with the class person. So here's our class, public class person, and then iske braces. Now we have to define some attributes here. So let's start. Person के कौन से attributes होते हैं? For example, we can take a name of a person. So string data type in Java, string data type का जो S होता है वो कैपिटल होता है. स्ट्रिंग हमने कोई डिफाइन करनी है तो इसमें S को कैपिटल रखेंगे, बिकॉज इन जावा स्ट्रिंग इज अ क्लास. ओके, so the first letter of this should be capital. String name, and we can take age of a person. So int, data type int, and then age. So and that's enough. The attributes हो गए, and so these two are attributes. Like in C++, in Java the comments are inserted in the same way. So these are the attributes. And now we will define a method. So method, basically what's a method? It defines the functionality of a class. So method is that अगर हमने कोई class create की है तो उसके methods हम वो बनाएंगे जो वो functions perform कर सकती है वो class. For example, हमने class ली है person, so उसके functions क्या क्या हो सकते हैं? उसके जो functions होंगे वो हम methods बनाएंगे. Public is a keyword. Public and void is the return type. And now the name of the method should be if we take, so eating is a function of a person, because एक इंसान जो है वो खाता भी है, so eating is a method of a person. Okay, so हमने एक method बनाया है eating के name से. So let me tell you the syntax. Public is a keyword कि जिससे ये जो function होगा ये इस class से बाहर भी accessible होगा. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. फिलहाल ये general से concept है कि public ये it's not mandatory.
you can remove it, and return type void, and then the name, and then the braces, और अगर कोई पैरामीटर होगा तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, but now there is no parameter, so we can just print a statement in this method, print okay, I can eat. So it's a simple method, and then insert semicolon to complete this statement. Let's define another method, public and then void, and eating, sleeping. So the same statement, print ln, and I am sleeping. We can do it like this, and let's define another public, then void return type, and then the name, for example, eat, drink, okay, drinking, and then brackets since it's a method. So this line, this whole is called the prototype of a function. So this is the prototype of this function, and that's for that one. So a prototype includes the return type and the name and the parameters. Okay, so let me copy this. So इन functions को हमने define कर दिया है. Drinking. Okay. Oh, sorry. So yeah, that's it. Now हमने एक क्लास बना ली, उसमें functions बना लिए, attributes बना लिए, लेकिन अब इनको execute करने के लिए हमें इस क्लास का एक object बनाना पड़ेगा. तो इसी क्लास में हम एक method define करेंगे जो कि main method होता है, because सारी statements execute वहीं से होती हैं. ये ऊपर जो भी हमने functionality define की है वो किसी भी काम की नहीं है, वो execute नहीं होगी, compiler इसको check ही नहीं करता अगर आप मेन मेथड नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंपाइलर जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है वो मेन फंक्शन से करता है. सो इन दिस मेन फंक्शन वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास to access all the attributes and methods of this class. So let's do it. Person p is equal to new person. So that's the method of creating an object. Creating object of person class. Now हमने ये यूज कर लिया और हमने क्रिएट कर लिया p, and you can see this symbol, it means that the value of p is not used. So हमने p डिफाइन तो कर लिया लेकिन इसको हमने यूज नहीं किया. इसको यूज हम कैसे कर सकते हैं? p डॉट हम फॉर एग्जांपल नेम को कॉल कर लेते हैं. p डॉट नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल Ali, and p dot age equal to 12.3. 12.3. So 12.3, it's a floating point number. That's why it's giving an error, because हमने यहाँ पे इसकी data type set की है int. So it should be 18 रख लेते हैं. So it should be an integer. Okay. So हमने इसके attributes को तो हमने access कर लिया. Now if we want to access these methods, then you can do it like this. It's the same, p dot and then the attribute or the method you want to use. So आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें citations भी दे दिए हैं. If you want to go through drinking and p dot drinking and eating. So like this we can create multiple methods and use them in the same way and then call them in the same way as well. Oh, drinking मैंने call कर दिया. Which one's left? Sleeping. Okay, so हमने कॉल कर लिया. अब ये तो हो गया, हमने सेट कर लिया, बट नेम और एज को हमने प्रिंट भी करवाना है. सो फॉर दैट यूज दैट system
dot out dot println. So first of all we will display the name equal to, so name is, so if you want to print multiple multiple मीन्स अगर आप एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल थिंग्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस प्लस ऑपरेटर. सो मेन नेम पहले प्रिंट होगा, फर्स्ट लाइन फर्स्ट जो भी हमने रखा होगा, उसके बाद नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी. एंड देन स्पेस की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग इट दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. नेम एंड एज होगी, देन एज की वैल्यू प्रिंट होगी. So that's it. Now we want if we want the control to go to the different line, to the next line, so for that we can use ln. It's escape sequence. Oh, it's showing an error on the name. So what's it? हमें चेक करना पड़ेगा इसमें एरर क्या है. सो इससे ये पता चलता है यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक क्लास होती है उसमें हम जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं. तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें उनको उसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ता है. सो p डॉट एज एंड p डॉट नेम से हमने इनको कॉल किया, तो आप देख सकते हैं इसमें अब एरर शो नहीं हो रहा. सिमिलरली हमने इनके मेथड्स को भी ऑब्जेक्ट से कॉल किया है. ओके, सो पहले इनकी वैल्यूज प्रिंट होंगी इन दिस होल लाइन, एंड उसके बाद ड्रिंकिंग की जो भी इसमें ड्रिंकिंग की बॉडी में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा. एंड हम एक और लाइन इंक्लूड कर देते हैं ln की. सो system dot out dot print ln means next line, so it will automatically transfer the control to the next line. So हम ये स्टेटमेंट हर जगह इंक्लूड करते हैं, तो जो नेक्स्ट इसके बाद प्रिंट होने वाला होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा. यहाँ पे भी कर लेते हैं, एंड देन वी विल सी द आउटपुट. कंट्रोल एस से आप इसे सेव कर लें, एंड देन रन एज जावा एप्लीकेशन. ओके, सो यू कैन सी नेम इज इक्वल टू अली एंड एज, और यहाँ जिस सीक्वेंस में हमने इनको कॉल किया था इन मेथड्स को, उसी सीक्वेंस में इनकी वैल्यू प्रिंट हो गई है, इनमें जो भी था वो प्रिंट हो चुका है. सो दैट वाज द बेसिक प्रोग्राम person.java. हमने एक क्लास बनाई. अब इसमें यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, इसी क्लास में हम करेंगे मेथड ओवरलोडिंग. सो ये हमने 3 मेथड्स डिफाइन किए थे, अब हम इनको मॉडिफाई करेंगे और मेथड ओवरलोडिंग समझेंगे. Before starting method overloading, first of all we should see the output of this program. हमने जो फर्स्ट लाइन में प्रिंट करवाया था नेम, वो प्रिंट हो गया, लेकिन इससे पहले ln भी था, मीन्स जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा. सो आई विल शो यू. देखें, बिकॉज ऑफ दिस ln कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद हमारी प्रिंटिंग शुरू हुई है. ठीक है, नेम प्रिंट हुआ, नेम इज इक्वल टू, एंड देन p डॉट नेम की वैल्यू, एंड देन जो और क्या होगा p डॉट नेम, एंड देन एज स्लैश इन एज मीन्स कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा, फिर एज प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा. उसके बाद p डॉट ड्रिंकिंग की वैल्यू, तो p डॉट ड्रिंकिंग हम मेथड में जाते हैं, यहाँ पे क्या है system dot out dot print ln मीन्स इसमें भी ln है, तो इसकी वजह से भी जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा. इसीलिए आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक एक लाइन का गैप आया हुआ है, बिकॉज हमने इन 3 मेथड्स में ln यूज किया है. इसका मतलब जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो गया. सो लेट्स मॉडिफाई इट. अगर ये हम ln हटा दें, देन लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है. So run as Java application. Okay, so you can see
नाउ यहाँ इसके बाद तो ये एलन था ही, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस आई है, बट उसके बाद ड्रिंकिंग और इन सब में सिर्फ एक लाइन का गैप है। मीन्स कि एक जो भी स्टेटमेंट प्रिंट होगी उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है। इनके जो सेंटेंसेस हैं इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, बिकॉज हमने एलन यहाँ से हटा दिया था। सो उम्मीद है आपको ये आउटपुट समझ आ गई होगी। नाउ वी विल प्रोसीड टू मेथड ओवरलोडिंग। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट जो एक क्लास होती है उसमें एक से ज़्यादा मेथड्स सेम नेम के साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया ईटिंग, सो ईटिंग के अलावा इस जैसा एक और मेथड नहीं आ सकता, बिकॉज कोई भी मेथड हम किसी क्लास में डिफाइन कर रहे हैं तो उनके नेम्स डिफरेंट होने चाहिए। अब अगर इसी को अगर हम करते हैं, एक मेथड डिफाइन करते हैं ईटिंग का, ओके तो मैं एक मेथड डिफाइन करती हूँ, एक और मेथड जिसका नेम ईटिंग ही होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पब्लिक का p it should be small minded. Okay, so it's showing an error as expected. Duplicate method eating in type person. So एक क्लास में एक नेम के एक से ज्यादा मेथड्स नहीं हो सकते। अगर हमने इस मेथड को डिफाइन करना है तो उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या है? डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम। ओके, सो ये एक टेक्निक है जिससे हम ईटिंग के, जिसे हमने यहाँ पे मेथड कंसिडर किया, तो ईटिंग के हम दो मेथड्स डिफाइन करेंगे, उनका नेम मतलब सेम ही होगा लेकिन फिर भी वो यूज हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? लेट्स सी। डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम। सो इसकी थ्री टाइप्स हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये होगा कि हम क्या करें। अच्छा, उससे पहले आपको बताएं कि जो ये फंक्शंस होते हैं इनको ओवरलोड करने के लिए इनकी जो भी डिफरेंट इनमें कुछ भी डिफरेंट आता है वो इनके पैरामीटर्स में आता है। कोई भी डिफरेंस होगा तो वो इनके पैरामीटर्स में होगा, हम इसी के बेस पे उनको ओवरलोड करेंगे। सो जो मेथड्स होते हैं उनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे ओवरलोड करते हैं, मतलब एक से ज्यादा मेथड हम डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे डिफाइन करते हैं एक ही क्लास में। So the first method is different in the number of parameters. Parameters are also called arguments. Okay, so these two names are used. So let's define a parameter. String. Eating string. It can be. So we can name it as food. So it takes a parameter food of string data type. System.out.println. So you can see that these two functions are different because we have overloaded them with different parameters, because इस वाले जो फंक्शन में इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और जो सेकंड हमने डिफाइन किया उसमें एक पैरामीटर है। सो ये डिफरेंट मेथड ओवरलोडिंग हमने की है, बिकॉज दैट इज डिफाइनिंग डिफरेंट मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके, सो इसमें एक ही नहीं है और इसमें सिर्फ एक है। सो इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, उसकी बेस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। I can eat, एंड फूड को हमने एक पैरामीटर लिया है तो इसको हम यूज कर लेते हैं। फूड की जगह हम क्या कर लेंगे, फूड इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। I can eat food, फूड की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे सेट भी कर देते हैं, फूड सिंस इट्स अ स्ट्रिंग। सो इसको डिफाइन करने के लिए हम डबल कोट्स में डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, I can eat pizza. It can be defined like that. अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, बट वी डोंट नीड टू डिफाइन अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन, बिकॉज हम एक ही ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट मेथड डिफाइन किया था ईटिंग का, उसी तरह हम एक और मेथड डिफाइन कर सकते हैं ईटिंग का, तो उन दोनों को हम एक ऑब्जेक्ट से कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट।
p पहले हम एक इसको नेक्स्ट लाइन में सेंड ओके कर लेते हैं print ln leave it, we don't need to do we don't need to do that because यहाँ पे हमने ln यूज किया तो वो नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा p डॉट ईटिंग को हमने एक पैरामीटर देना है तभी सेकंड वाला मेथड कॉल होगा, अदरवाइज फर्स्ट वाला हो जाएगा अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे तो। p डॉट यहाँ पे हम कोई फूड की वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से बर्गर। नाउ you will see the output run as Java application. Got an error. Brackets. Wait. Let's check यहाँ पे क्या error है। अच्छा, main की जो brackets थी वो complete नहीं हुई थी। So now it's complete. Again, run and then run as Java application. Output show कर दिया है। Let me bring it up. Okay. A is equal to A, and I'm sleeping and I can eat pizza. I can eat pizza. So ये इसी लाइन में प्रिंट हुआ। Let's see ये कैसे हुआ। So let's try to do it in another way. यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। I don't know ऐसा आउटपुट क्यों दे रहा है। प्रिंट ln हमने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। So हमने यहाँ पे बर्गर दिया है। Let's see अब डिस्प्ले भी क्या आता है। So run as and Java application output आ गया। So next लाइन में प्रिंट हो गया I can eat pizza। लेकिन हमने तो यहाँ पे बर्गर दिया था, राइट? हमने बर्गर पास किया लेकिन जो प्रिंट हुआ उसमें यहाँ पे पिज्जा आया, तो ये कैसे? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड p डॉट ईटिंग। सो यहाँ से कंट्रोल गया सेकंड वाले मेथड पे, देन फूड की जो वैल्यू हमने पास की थी वो थी बर्गर, बट इस बॉडी के अंदर भी जब कंट्रोल गया तो फूड की जो हमने वैल्यू दी हुई थी वो था पिज्जा। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे बाद में रिप्लेस हो जाती है पिज्जा से। दैट्स व्हाई हमारे पास आउटपुट में पिज्जा आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम इसको इस लाइन को रिमूव कर देते हैं और फिर अपना आउटपुट दोबारा से चेक करते हैं। अब ये बर्गर शो करेगा, सी अब यहाँ पे बर्गर प्रिंट हुआ है। सो इसी तरह हम फंक्शन ओवरलोडिंग ऐसे करते हैं। इट वाज द फर्स्ट मेथड। लेट्स सी जो नेक्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड ये था कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम यूज करें। अब सेकंड मेथड ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स यूज करें। ओके, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम रख लेते हैं स्ट्रिंग फूड, एंड यहाँ पे इसको नहीं हम चेंज करते, नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक इंट की वैल्यू रख लेते हैं कि वो कितने क्वांटिटी में खाया। लाइक हमने पहले बर्गर पास किया था तो हम वो कितने बर्गर्स हो गए, हम वो एक और एट्रीब्यूट हम रख सकते हैं, n रख लेते हैं, इंट n। सो ये स्ट्रिंग फूड एंड स्ट्रिंग फूड, आप लोग सोचेंगे ये दोनों इक्वल, ये तो बिल्कुल सेम है, तो ये कैसे यूज हो गए? ये ऐसे यूज हुए कि दोनों जो मेथड्स हैं उनके लिए अपने अपने वेरिएबल्स नेम हो सकते हैं। अगर वो किसी दूसरे मेथड से मतलब मैच भी कर रहे हैं तब भी ये एरर नहीं देगा, बिकॉज इसका अपना मेथड है और इसके अपना फंक्शंस हैं, इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह ईटिंग का अपना एट्रीब्यूट मेथड फूड है, सॉरी ईटिंग का अपना जो एट्रीब्यूट है वो फूड है और इस ईटिंग का अपना एक है फूड। क्योंकि इसके साथ एक और भी वर्स हो गया तो ये हम सेकंड मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि है डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके, सॉरी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। डिफरेंट n को हम यहाँ पे यूज कर, n हम अब वहीं से मेन फंक्शन से पास करेंगे ताकि यहाँ पे वो प्रिंट भी हो जाए साथ।
I can eat, यहाँ पे हम कर देते हैं n प्लस फूड, सो n के बाद हमें गैप चाहिए, n and some space, n food, so it will print I can eat, n की वैल्यू हम पास करेंगे मेन से, एंड देन स्पेस प्रिंट होगी, उसके बाद फूड की वैल्यू प्रिंट होगी. सो लेट्स चेंज इट, बर्गर, और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम बर्गर कर देते हैं, एंड यहाँ पे एक तो पैरामीटर में बर्गर पास कर दिया, नेक्स्ट पास करेंगे हम, क्या होगा, n की वैल्यू, जी n की वैल्यू प्रिंट करेंगे जो कि हम कर लेते हैं 2, तो आई कैन ईट 2 बर्गर, बर्गर्स यहाँ पे बर्गर्स कर दें बिकॉज इनकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो हम यहाँ पे बर्गर्स कर देते हैं. ओके, ऑल डन, प्रिंट ln, यहाँ पे भी बर्गर्स 2. ओके, अब इसको हम रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, आउटपुट शो हो गया, आई एम ड्रिंकिंग, अच्छा ये तो ऐसे प्रिंट हो गया. उसके बाद आई एम स्लीपिंग, ये हुई है स्लीपिंग वाली लाइन, आई कैन ईट 2 बर्गर्स, ये देखो ये इस तरह प्रिंट हो गया. ओके, यहाँ पे हमने एक पैरामीटर इंक्लूड किया है, तो इसको हमने यहाँ पे भी लाना चाहिए था, आई कैन ईट, यहाँ पे हम ऐड करते हैं फूड की वैल्यू जो हमने पास की है, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं होंगे, डबल कोट्स यहाँ पे आएंगे और एंड हो जाएंगे. आई कैन ईट के बाद गैप होना चाहिए क्योंकि फूड की वैल्यू उसके बाद बिल्कुल बाद प्रिंट हो जाएगी, स्पेस खुद देनी पड़ेगी. रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके, आई कैन ईट बर्गर, एज यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट हो गया है, बर्गर भी प्रिंट हो गया, और यहाँ पे आई कैन ईट 2 बर्गर्स. ओके, सो ये था मेथड ओवरलोडिंग, जो हमने इसकी 2 तरह की मेथड ओवरलोडिंग हमने पढ़ी, एक था डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स और दूसरा था डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने सेकंड मेथड इम्प्लीमेंट किया है वो दोनों जो हमने मेथड्स किए हैं इनको दोनों को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, बिकॉज इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर कैसे हैं कि इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं है, इसकी हमने इंट रख दी है, तो इनकी देखो इनकी जो टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, वो भी डिफरेंट होगी और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट हो गए. तो ये दोनों हमने टेक्निक्स एक ही मेथड में हमने इम्प्लीमेंट कर दी और हमें आउटपुट भी मिल गया. तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. So that was it for today. Hope you understand each and everything discussed in this video, and if you don't, you can question there and I can answer you in the comment section. So it's all, and I'm done with it, and okay, bye.